सर ये आपके आदेशानुसार जो हमारा अगले 5 साल का फाइनेंस कमीशन के कोटर्मिनस जो हमने अपनी यूएफसी बनाई है उसका प्रेजेंटेशन है सर। हाँ ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा था कि जितना हमारा जो अभी साल खत्म हुआ 31 तारीख को उसका जितना खर्चा हुआ था उसका 5.5 टाइम्स इसको रखा जाए जो हमने अपने एस्टिमेट्स बनाए हैं। तो उतना ही रख के सर हमने 5.5 टाइम्स। यस सर ऑफ द लास्ट ये सर एक जेनरिक उन्होंने इंस्ट्रक्शन सारे मंत्रालयों के लिए जारी की। मतलब 5.5 टाइम्स मतलब हुआ कि एक साल का जो है उसका 5 जी हाँ 5.5 गुना 5 साल 5.5 के गुना लिए। सर जो आखिरी साल था 31 मार्च 21 को जो समाप्त हुआ उसमें जो खर्च आपने किया जी सर उसका 5.5 गुना सर फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स। मतलब एक तरह से 0.1 प्रतिशत इंक्रीज दिया सर प्रति वर्ष। हैं Yes, अगर sir. 100 रुपये थे तो अब कितने 5.5 जी सर ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स। सर हमारा जो 0.1 पर ईयर हो गया। एक्चुअली इंक्रीज 0.1%। हाँ हाँ, सर हमने जो अपना एस्टिमेट बनाया था that was about 1% तो बहुत ही कम हुआ। बहुत कम है सर। मैं बताऊंगा सर हमने कैसे इसको समेटा है इन द अमाउंट गिवन टू अस। So we had a total estimated expenditure of about 18,000 crore, little more than 18,000 crore, which we had to reduce to 15,471 crore. And then how we meet the other obligations, I'll tell you. So next slide. So ये बहुत ही सामयिक है सर. This is very topical that how a pandemic or an epidemic driven by virus has the tendency to come back when we are most complacent, sir. So the HIV pandemic or epidemic rather which is going for last 30 years, sir, in India we have been able to control, but the moment as they say in Hindi सावधानी हटी तो दुर्घटना घट सकती है sir. So the next 5 years plan is how we continue the work that we have done and how we further consolidate and make sure that the gains that we have made in the last about 30 years and particularly in last 5 years, sir, how we will consolidate and how we will make sure that the sustainable development goals are met, sir. So ये पहला वाला सर bubonic plague तो था मतलब that was not a virus infection, sir, but the remaining all that was bacterial, but the remaining all are whether it was Spanish flu of the last century or HIV/AIDS or SARS which came and went, then H1N1 and the present ones are now, sir. So this is a general gives us the background why we should be on our guard, sir. Next. Sir, the context of our present EFC, the EFC that we have made is that it continues to be a challenge despite significant gains in India, sir. India is world's second largest epidemic, HIV epidemic. The adult prevalence is small, it's 0.22%, but in terms of number, because we have 1.4 billion, sir, the numbers are large. That makes it the second largest epidemic in the world. About 8 crore people are in need of direct preventive testing treatment services in this country, sir. Also, sir, the National AIDS Control Program is the program for all sexually transmitted diseases and infections. So that is our second thing, but as one is the proxy for other, as HIV is the proxy for STIs and STIs are the proxy for HIV, sir, we cannot leave one of them alone, sir. SDG goals are that we have to end HIV/AIDS as a threat to public health by 2030, sir. We are a signatory to these goals, sir. In the last 7 years, particularly since 2014, sir, the significant, in fact, ये जो भी बड़ा काम हुआ है, सर, वो सन 14 के बाद ही हुआ है, सर. HIV/AIDS प्रिवेंशन एक्ट 17 में बना है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 17 में बनी है, उसके बाद सर वायरल लोड टेस्टिंग यूनिवर्सल 2018 में हुई है, और एक चीज़ में मिस कर रहे हैं इसमें, हमने जो एक और बड़ी की है टेस्ट एंड ट्रीट, सर. टेस्ट एंड ट्रीट हमने 2017 में करी है, सर. सो मोस्ट ऑफ दिस हैज़ हैपन्ड, द रियल कंसोलिडेशन आफ्टर 2014, सर, एंड we see, sir, most of it was either led by you or the earlier minister, sir. So उसके साथ साथ जो हमारा AIDS का एक्ट है, सर, वो HIV/AIDS एक्ट. The other thing that we are doing, which perhaps no other country is doing with a legal framework, is mitigation of HIV/AIDS related stigma and discrimination, sir. Next.
So this is the background how it started. The pre-NACP was 1985 to 1981, when the activities were, it was in a nascent stage, serosurveillance. First case was detected in Chennai in 1986. Ministry में एक AIDS cell बनाया गया सर, और the emphasis was, because at that time blood was seen to be the primary route for infection, safe blood and IEC, talking about it. It was a taboo because the route was seen to be sexual at that time. So that was the pre-NACP stage. सर NACP जो था सर आज से 29 साल पहले पहला फेज 1992 में शुरू हुआ सर. Again it was about IEC, blood safety, surveillance and a centralized approach, sir. The real work started with NACP2, sir, 1999 to 2007. But again, this was, when we were building the foundations. So prevention, counseling, testing, launch of treatment service started in 2004, sir. जिसमें कि हमने सरकारी खर्चे पे बहुत कम लोगों को दवाइयाँ देनी शुरू करी, और ARV at that time, one patient's total expenditure annually was about 6.5 lakhs, sir. 6.5 लाख रुपए एक पेशेंट पे सालाना खर्चा होता था सरकार का, सर. और उस इसमें जो the two achievements of this phase were the starting of the treatment in a very small manner and decentralization to states. That the states AIDS control societies were made, sir, and they were empowered, though it remained a central sector scheme and it fully funded by the government of India, sir. The NACP 3 phase was when we scaled up, sir, between 2007 and 12. उसमें सर प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के बीच में बैलेंस आने लगा, और उसके अलावा सर देन since it's a dynamic like all virus driven epidemics, it's a dynamic epidemic where the impact was changing, where the route was changing. So how do we address that, sir? This was the third phase, sir. Phase 4, we come to the next slide, sir. फेज़ 4 जो 2012 से 2020 8 साल में रहा सर, इसके 12 से 14 के जो 2 साल थे उसमें कोई बहुत कार्य नहीं हुआ सर. उसमें बजट भी बहुत काट दिया गया था. तो अब 1600 करोड़ मिलता था, ये लोग 1400 करोड़ कटता था और 1200 ही करोड़ खर्च कर पाते थे सर. बट द रियल वर्क स्टार्टेड इन 2014, सर, एंड दीज वर द गेम चेंजर्स. द एक्ट ऑफ 17, टेस्ट एंड ट्रीट, community based screening, universal viral load monitoring. This is all in line with what the WHO and the UNAIDS have prescribed, sir, globally. Then mainstreaming of the aid response, sir, ये हमारा जो NACP में हमने स्वयं किया सर, कि जब हमारे resources पे और demand होने लगी, तो how do we take help from resources of other entities and make sure that the response remains focused. So it was about, sir, from other ministries, जैसे transgenders के लिए social justice में हुआ, truckers के लिए Ministry of Road Transport and Highways की हेल्प ली गई सर. इस तरह से सर प्रिजन्स में जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए होम डिपार्टमेंट्स और प्रिजन डिपार्टमेंट की स्टेट्स में हेल्प ली गई सर. एंड मेनी स्टेट्स वर एनकरेज टू स्टार्ट पेंशन स्कीम्स विच सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट डू फॉर द पीपल लिविंग विद HIV. उसके अलावा सर हमने कुछ नई तकनीकें भी लाए जिससे कि खर्चा कम हो. सो इन लास्ट ईयर 2019-20 सर, dolutegravir बेस्ड ARV रेजिमेन वो स्टार्टेड. ये सर एक तरह से एक रेवोल्यूशनरी रेजिमेन है सर, जिसमें पहले एक PLHIV को दिन में 8-10 तरह की डिफरेंट टैबलेट्स खानी पड़ती थी. दिस इज वन टैबलेट विच हैज ऑलमोस्ट जीरो साइड इफेक्ट सर, एंड जस्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस रेजिमेन प्रोग्राम इज सेविंग अबाउट 50 करोड़ रुपीज एनुअली सर, मोर देन दैट अबाउट. सो और इसमें सर हमारे यहाँ 3 रेजिमेन ट्रीटमेंट के होते हैं. फर्स्ट लाइन विच इज़ फॉर ऑल, वेयर द फर्स्ट लाइन फेल्स इज द सेकेंड लाइन, ऑन विच वी हैव अबाउट 1 लाख पेशेंट्स. And third line, which is very rare, where the failures on second line are there, वो सिर्फ 3000 है. But dolutegravir से क्या हुआ सर, because it's a new and different kind of salt sir, हमने second line को भी यही दे दिया, और second line की दवाइयाँ बहुत महंगी होती थी. So because of that, we have been able to save about, with the introduction of this regimen, about 50 crore rupees annually, sir. Next. This is the impact, sir, of a person living with HIV before the ART was introduced and after, sir. This is actually a real picture of a living being, sir. Next. Now, sir, the present phase, which is like the 5th phase from 2021 to 2026. So here the idea is to consolidate gains and address the unfinished agenda, sir. Next. So जो हमारा गोल है सर वो तो SDGs के साथ अलाइन ही है, एंड ऑफ एड्स एज एड्स एपिडेमिक एज अ पब्लिक हेल्थ थ्रेट बाय 2030. ये जो साल हैं सर, इसमें हमें
न्यू एनुअल इन्फेक्शंस के रेट को कम करना है और यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी STI and RTI. So if we see till now, our focus has been on HIV and we have been able to a great extent control that. But as a result, sir, the STI and RTIs, from where the entire story of HIV started 30 years ago, they are again resurging, sir. And they will impact the lives. These are sexually transmitted infections, sir, the productive population. So how do we control that? Sir, ये हमारा इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा किए बगैर we have to bring focus back apart from HIV on STIs and RTIs. Sir. Next. So these are the what we have to achieve. This is again aligned with the 95 goals of UNAIDS, sir. So people living with HIV who know their HIV status percentage wise, sir, 2018 में it was 71%, 2019 में 76%, 2020 as we know, sir, it was almost a waste. So the increase is only 77%, but the target by 2025 is 95%. But going by the way we have progressed, sir, this is achievable, sir. People HIV who know their HIV, that is first 95% should be on antiretrovirals. Here the numbers are 82, 84. It's gone down because of the pandemic, sir. And we have to again bring it back to 95%. And it is the most difficult, sir, because जब पहले का 95 बढ़ेगा तो नीचे का numbers बढ़ जाएंगे, sir. And the third is easy, that is people who are on HIV, giving them, testing them viral and keeping them virally suppressed. So viral load testing and keeping them virally suppressed. That would not be difficult, sir. आपने एक पहले भी presentation किया था. We'll talk about it, how we are going to strengthen our viral load testing, sir. Next. So these are the 4-5 pillars on which the program rests, and it will continue to rest in this phase as well. So, in the next slide we'll show how budgeting has happened over the years, sir. Information, education and communication, sir, इसमें खर्चा बहुत नहीं होगा, सर, जो हमने प्लान बनाया, क्योंकि न्यूअर जनरेशन ऑफ कम्युनिकेशन सोशल मीडिया से होगा. जो अखबारों में पैसा दे के ऐड छपता था वो नहीं हो रहा है, सर. द ओनली money that we are giving for IEC is to the Doordarshan and all India Radio, sir. Rest of all, it's now almost free, sir. Then IEC we are also doing amongst the youngsters through various that Red Ribbon clubs, which is not much of money, but creating awareness and stigma and discrimination. So much of it is done through the civil society groups and the NGOs, sir. Now prevention, sir, it's keeping the millions of high-risk group and rich population safe, sir. Here, sir, are the model that India has propounded is that targeted intervention, social contracting model, where people who are themselves affected by the epidemic, they themselves take care of the prevention activities in a targeted manner, and that is our contribution globally to the HIV epidemic control, and it's now being replicated in similar countries. But we started it here, and it remains our, as I say, sir, हमारा वो trademark है जो HIV में हम targeted interventions के through prevention कर रहे हैं. So we'll continue to do that, sir. There is some expenditure on that, but I'll tell you, sir, how we have optimized that, sir. Then community-based organizations के through, sir, and test, trace, and treat, which remains the mantra, sir. Then, sir, testing of almost 8 crore individuals every year, out of which 3 crore are pregnant women. The entire cohort of pregnant women they are tested. So as to ensure that there is not a single birth of a child who is HIV positive from a HIV positive mother. Apart from that, sir, there are about 1 crore key populations who are part of the program, and the remaining 4 crore are people who are high risk, and they need to be tested and continue to be tested, sir. Treatment of about 14.8 lakh people who are on ART currently, sir, and the numbers have to increase, because if we have to touch the second 95, these numbers are going to go up by 18 lakhs, sir. Then opportunistic infection ke liye, again, sir, there it is the TB, it is viral hepatitis, but we are using synergies with those programs to make sure that whether it's a PLHIV who's co-infected with TB, or it's a TB patient who comes through that program and we find that he's HIV positive, how do we treat them at a single window, thereby reducing expenditure and giving him one window service, sir. And viral load monitoring is, in this year, sir, we plan to have about 9 lakh tests, and that by next year we are going to ramp up to the entire cohort of
about 15 lakh people or 16 lakh people who will be there for treatment next year, sir. So these are the five pillars, sir, and the bedrock on which this program rests is strategic information, IT, and institutional strengthening, which also includes the HR, sir. Within the limited budget, how we again optimize, sir. The next slides I'll tell, sir. Next. Sir, तो वो हमारा था जो पिछला slide था. Those are the tasks that we have to do, sir. Now I have prioritized those tasks in terms of the commitment that the central government has given, in terms of the expenditure that we are going to make, sir, and in terms of requirements, sir. So priority area number 1 is uninterrupted treatment, sir. The government of India has taken over the responsibility of providing free ARVs to everyone who's positive, sir. अभी जैसे मैंने कहा सर हमारी संख्या 14.8 lakh है. Estimated population is 21.20 lakh, but not all of them will be available because there's some losses, some deaths, there are some duplications in the data also. So if we are able to actually bring 18 lakh, 18 lakh people for testing, that is the optimum number that we would have. How are we going to do it, sir? That, as I said, introduction of newer regimens. The earlier regimens, which had huge side effects, made people run away from treatment, leave the treatment. That is happening less now, sir. It's cost effective, easy, and with very, very few side effects, sir. Then streamlining the second line treatment, sir, which as I said that because of the new regimen, now first line as well as second line is one. So उससे खर्चा और उससे सर जो प्रोग्रामेटिक कन्फ्यूजन होगा कि 1 लाख में ये जो लेवल 2 वाले जो आपने जो सेकंड लाइन वाले पेशेंट्स है, they were scattered. So now all of them are in line 1, sir. And economies of scale, since it's a centrally funded program, sir. It is being procured, what they call strategic purchasing by CMSS, where we get actually the drugs that we buy through tender through CMSS are 1/5 of they're all generic, sir, and 1/5 of the MRP, sir. So that is why we are able to achieve economies of scale. This will continue to remain our strategy, and this will continue to remain our priority area number 1. Priority area number 2 is viral load monitoring, sir. जिसमें जितने लोग टेस्ट करेंगे उतने ही लोगों की जितने लोग ट्रीटमेंट पे होंगे उतने ही लोगों का वायरल लोड टेस्टिंग होगा. सो हियर सर what happens if we are able to regularly do the viral load testing, then we know, sir, whose infection has subsided, the viral load has subsided, and then instead of calling them every month, we can call them once in 3 months. So thereby again, sir, एक तो उनका they will have less reasons to leave the program. Second, we'll save, sir, because मेरे डॉक्टर का, मेरा काउंसलर का, मेरा जो वहाँ पे फार्मासिस्ट है, सबका वर्कलोड कम होगा. And that's how we have optimized human resources in the next phase, that by introducing multi-month dispensation, so that there's less load on ARV center and there's no reason for opening new ART centers, sir. ऑल्सो सर जो आपका आदेश है उसके अनुसार सर जो हमारी अपनी जो 64 लैब्स हैं वायरल लोड की, उनको हम ऑप्टिमाइज जो सब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो रहा है थ्रू दिस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद HLL. सो द आइडिया इज दैट वंस द प्रेजेंट पार्टनर एग्जिट्स, द एंटायर number of tests, which could be between 18 to 20 lakhs at that time, would be done by these public sector labs through HLL. And right now we are in negotiating with them, as you were directed, to give us a good deal where we save money, sir. So this is priority area number 2. Number 3 is new infection prevention, sir. Here the targeted and people-centric focus approach will continue. So we are leveraging for now various key populations. For, as I said, transgenders and hijras, much of the activity is now in Ministry of Social Justice and Empowerment. For truckers and bridge populations, it is road transport and highways. For minors and sex workers, it is WCD, sir. So it is that we are linking their initiatives with our program to give a holistic package of services to these key populations. Also, sir, for the 3 crore women who are pregnant women who are tested every year, the synergies are in place, and we are going to increase with NHM, sir. So that again, the HR cost is saved, and in their activities we are able to dovetail. Also, we are introducing, sir, dual testing kits. So that will again, so that will be for HIV and syphilis. So एक ही बार sample लेने से उसमें दोनों टेस्ट होकर रिजल्ट आ जाएगा, and that will
make us achieve our syphilis targets to keep these at least this cohort of 3 crore women safe, sir. Or if they are, someone is found positive, then they're linked to the treatment, sir. Fourth is, sir, that which is a new priority area, is resource optimization and IT, sir. So much of the physical activities will be phased out during the first year of this phase 5, sir, and everything will be on a seamless IT platform. What they internally we have called it सोच, but उसका कुछ हिंदी नाम अब हम सोचेंगे, क्योंकि अभी तक सर वो ग्लोबल फंड ग्रांट में था. 1 अप्रैल से वो हमने नैको ने उसे टेक ओवर कर लिया. तो ये शोभनी और डॉक्टर पुरी और डॉक्टर गोयल सर, एक्चुअली हिज वाइफ इज डाउन विद वायरल, नरेश गोयल साहब की, तो वो आज आ नहीं पाए. ये लोग कुछ इसका हिंदी नाम ढूंढ रहे हैं सर. So will this our IT platform will be seamless end to end for all, from the time a lay person comes for a testing, and if unfortunately somebody turns positive and is on lifelong treatment, that entire continuum will be on IT, sir. So this will give us substantial saving. Then, sir, HR, as we said, if we are able to optimize the way the work is designed, with every phase of an NACP, sir, these are all contract, because it's a project, sir. It should end by 2030 if we are able to control the epidemic, sir. So project with the HR is mostly either taken from the states or contractual, sir. So contractual के जो compensation package है, sir, वो हर 5 साल में जब भी नया phase बनता है, तो वो redesign होते हैं. तो we might have to give some increase to the contractual workers, and they are demanding it. How will we give it? So, sir, we are going to optimize by keeping the envelope of expenditure the same and reducing the number of posts, but increasing their, these are not posts actually, positions, and increasing their compensation package. So this is how we are going to. कम करेंगे तो कोई. सर, जब हम वहाँ पे काम कम करवा रहे हैं, सर, because हमने जो in a ART center, sir, if there are footfalls every month of, let's say, 3,000 people, and now it's every month 1,000 people, if we are able to stagger them, those who are stable and adhering to the treatment, sir. So this is how we'll, so there will be some, pluses and minuses, but the way, there's a committee constituted by my predecessor, Aarti ma'am. तो वो कमेटी ने इस पे यही काम किया है, सर, कि किस तरह से हम इसको मोस्टली बजट न्यूट्रल करके उन लोगों को हम हायर सैलरीज दे सके. उसमें सर कुछ ऐसा भी है कि अबाउट 15% पोजीशंस ऑलवेज रिमेन वेकेंट. So there's a justification for seeing whether they are required or not, sir. So this is टाइमलाइन से लिंक करना पड़ेगा. जी सर. जो हम दिखा रहे हैं सर कि हम इतने ही लोग लेंगे अगेंस्ट ए बिगर सेट जो हम ले सकते थे, तो इतने लोग किस समय तक लेंगे, इतने लोग किस समय तक लेंगे, वो जब तक नहीं होगा, there would be no pressure to reduce the number of people. So it cannot be open-ended. It has to be linked to a particular time. Sir, the committee is actually, we have asked them to give a recommendation is like this only, that how over the years it will be done. Because if we do it on file, there will be questions asked. But if everyone does collectively, and in this program, sir, the civil society groups, PLHIV themselves, everyone is involved. सबसे पूछा जाता है. So then the ownership remains, sir. So then another thing is that वो तो हमने जैसे उधर बताया था कि ये second pillar में कि optimal use of viral load. Similarly, sir, private sector engagement in treatment is also there, sir, where there are some people who are about in about apart from the 14.8 lakh that we have, there's about 1.5 lakh PLHIV who are taking treatment from private sector, sir. So how do we, they are only taking drugs. वो वायरल लोड टेस्टिंग करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं हमें पता नहीं है, वो कैपेबिलिटी भी नहीं है पब्लिक सिस्टम्स के बाहर, सर. सो वी वांट दोज पीपल टू बी लिंक टू द प्रोग्राम फॉर वायरल लोड टेस्टिंग. सो वील हैव टू थिंग्स. उनका एक तो हम सप्रेस करके रखेंगे वायरल लोड, दूसरा सर दैट डेटा विल कम टू अस एंड विल नो एग्जैक्टली उनको क्या रेजिमेंट दिया जा रहा है, उनकी सेहत कैसी है. सो higher engagement on the pattern of TB, sir. So this is what we're learning from TB, that how they have engaged with private sector to increase their area of activity without actually disturbing the equilibrium. So they should not, because private sector in NACO things, AIDS control, कि हम उनके patient ले लेंगे क्योंकि हम free में दवाई देते हैं. So that without posing that threat, or without threatening them that will happen, but we'll say we'll support you to the extent it is possible. And if there are some more people who want to go to the private sector, they can always go, sir. So also, sir, creating platforms for integrated service delivery, sir. So here comes the STI thing, sir.
So we had in the last Global Fund grant made a model of a 360-degree prevention and treatment model, which we have now kind of refined as Sampoorn Suraksha. So there sir, from testing to counseling to treatment to linkage, everything will be done at one place, and it will be both for RTI, STIs and HIV/AIDS. So again, by having one-stop center for the entire 360-degree things, we'll be able to save some money, sir. Next. So this is the overall plan. नाम रखा है संपूर्ण सुरक्षा। जी सर, संपूर्ण सुरक्षा। अभी सर मतलब वो तो प्रोटोटाइप ही है सर, फाइल तो आपके पास आएगी वो अंततोगत्वा सर, बट अभी सर इन लोगों ने जो उसका प्रोटोटाइप है वो संपूर्ण सुरक्षा है सर. So the idea is that it's not only, the focus should not only be on HIV, it should be on STIs, RTIs, linkage loss, bringing people where people are with multiple infections, even TB if somebody wants, all that is available to them at one stop, sir. इसमें जो सारा कुछ ट्यूबरक्लोसिस के साथ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रखा हुआ है जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल दोनों एक दूसरे के मतलब सर वो दवाइयाँ खरीदते हैं और जो PLHIV अगर टीबी से पीड़ित हैं उनको दवाइयाँ हम ART सेंटर से ही देते हैं विदाउट गोइंग एनीवेयर. उसके अलावा मैं सर, सर कह रहा हूं, सर, सर. जो टीबी की सर देयर आर सर्टेन स्ट्रेटजीज व्हिच आर वर्कड, जैसे इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, जहां आपको लग रहा है प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा हिचकिचाहट होगी, उसको डर लग रहा है कि आप उसके पेशेंट ले रहे हैं, सो दे कैन बी अडॉप्टेड सर होल्सो. उससे जो ओवरऑल टीबी वाला आपका फोकस है वो भी रिन्यू हो जाएगा और आपको भी फायदा होगा. जी सर, बिकॉज़ दीस थिंग्स हैव वर्कड. वही सर. मेरा एंगल वही था कि भाई ये भी देखो, ये तो फोकस है ही है, ये तो 85 से चल ही रहा है, लेकिन अभी इस समय टीबी भी बड़ा जी फोकस है सर, ना. सर. तो टीबी के प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए जहाँ से जो कुछ भी हम कर सकते हैं साथ में मिलके, सर, ये नहीं कि उधर से इधर ही आएगा टीबी में, टीबी वाला प्रोग्राम सर हमने जैसे आईसी में उनको आईसी नैको का हमेशा से बहुत सक्सेसफुल माना जाता था. उसमें हम जब तक डॉक्टर सचदेवा थे तब तक, बिकॉज ही वॉज अर्लियर विद अस इन HIV, सो मेनी एक्चुअली मोस्ट ऑफ द थिंग्स दे डू इन IEC आर बेसिकली एंड एंगेजमेंट विद यूथ and through the other partners, sir. That is basically NACO model, and we continue to work together, sir. I mean, both the teams sit together and decide, sir. But there are actually big learnings, as Secretary Sir is saying, for us now from the TB program, sir. So this is the overall budget, sir, which, as I said, has been pegged at 15,471.94 crores over the next 5 years, sir. So there is hardly any increase, sir. Next slide. So this is annual. I'd ask them to make a pie chart कि टोटल जो हमारा पैसा एक साल में जा रहा है वो किस किस चीज़ पे कितना खर्च हो रहा है, सर. तो 30% करीब वायरल लोड पे खर्च हो रहा है, सर. 8% वायरल 3% ARVs पे खर्च हो रहा है, दवाइयों पे खर्च हो रहा है, सर. 8% वायरल लोड पे खर्च हो रहा है. अदर ड्रग्स एंड टेस्ट किट्स ऑफ OST और STIs की, सर, इस पे 7% खर्च हो रहा है. IEC पे 2%. As I said, IEC now, sir, is not expenditure intensive, it is activity intensive, sir. Institutional strengthening, sir, जो यानी NACO पे जो खर्चा होता है वो पूरे बजट का सिर्फ 1% है, सर, जो सेंट्रल है. और उसके अलावा जो स्टेट्स को ग्रांट एड जाती है, सर, उसमें से 6% इज फॉर सैक्स का जो HR है उसके लिए, और सैक्स को बनाने के लिए अगर कहीं पे उनका कंप्यूटर्स एंड consumables and electricity bills, etc., wherever the states have not given. At most places, states have given, sir. So it is basically the HR expenditure of the state's AIDS Control Society. तो आप देखेंगे सर हमारे पूरे बजट में साल के सिर्फ 6% उनकी तनख्वाहों पे खर्च होता है एम्प्लॉयज़ की, और 1% सेंटर पे, तो यानी 7%, सर. बाकी पूरा प्रोग्राम पे ही खर्च होता है, सर. 14% is on TIs, targeted intervention, that is the prevention, sir, which is done through the states. And programmatic expenditure in the states is 28%, sir. This goes through the grant in it. पूछूं कि पिछले 5 साल में जो भी प्रोग्राम चला, जो जी सर, उसमें उसके कंपोनेंट थे, और अभी के 5 साल में जो हम प्रपोज कर रहे हैं, तो उसमें क्या ग्लेरिंग मतलब डायनामिक चेंजेस हैं कि भाई हम कहें कि भाई पिछले 5 साल से ओवर एंड अबाउट द लास्ट 5 ईयर्स हमने कुछ ये नया
हम करने जा रहे हैं, ये उसमें इनोवेशन है, ये हमारा उसमें डायनामिक अप्रोच है। एक तो है कि भाई प्रोग्राम है, चल रहा है, Sure. एड्स वगैरह का 85 से चल रहा है, थोड़ा बहुत कैंपेन करते हैं, थोड़ी दवाइयाँ हम देते हैं, थोड़ा टेस्ट करते हैं, थोड़ा ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन ये कि भाई अब वो तो ठीक है, उन्होंने गोल फिक्स कर दिया 2030, लेकिन कोई हर बार मतलब पिछली बार से कुछ नई चीज़ें होनी चाहिए ना, वो क्या सर है सर इस बार जो नई चीज़ें हैं, एक तो सर पिछली बार बिल्कुल भी वायरल लोड टेस्टिंग नहीं थी, तो वायरल लोड टेस्टिंग इज द थर्ड फाइनल 95 सर, so that is complete new as it was not there earlier sir, that is one. Two sir, that universal ARVs sir, अब this test and treat also started in 2017. इस जो पिछला फेज तो 2012 में शुरू हुआ था, उसके 5 साल बाद 2017 में टेस्ट, तो उससे पहले सर अबाउट आई थिंक 30-40% पीपल वर गिवन। बड़ी चीज जो आलोक तुम कर रहे हो, जो तुम नहीं एम्फसाइज कर रहे हो, वो ये है कि जो लोग ने कम्युनिटी तो है, जो लोग ART पर थे सर फेज 2 फेज 3 इनफैक्ट फेज 3-4 से सर, उनमें से कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ देयर वायरल लोड, उससे इवेंचुअली इनके प्रोग्राम की कॉस्ट्स कम होगी, प्रोग्राम की एफिशिएंसी बढ़ेगी। आज अगर आप इनसे पूछेंगे, बताने की स्थिति में नहीं है कि मैं इतने लाख लोगों को या इतने हज़ार लोगों को अगर मैं ART पे रखता हूँ, ट्रीटमेंट देता हूँ, तो उसका नतीजा क्या निकल रहा है। अब ये लॉन्गिट्यूडनल डाटा दे पाएंगे ये कहते हुए कि मैंने इनकी रिपीटेड टेस्ट्स किए और इनका वायरल लोड से नीचे आया, and as a result of that they have gone out of the program or will go out of the program over a period of time. सर they will sir, yes sir, nobody will go out because दवाई तो वो लेते ही रहेंगे सारी जिंदगी Go सर, out in the sense कि इस पर प्रायोरिटी खत्म हो हाँ, जाएगी वो सर, priority प्रायोरिटी में खत्म नहीं है, हो जी उसका सर। viral load अब manageable Sir. limits में आ गया। What is called sir in the globally it's called U is equal to U, undetectable is equal to untransferable. तो वो अगर इस स्थिति में आ गए कि कोई if they do some rash sexual activity also, they will not be able to transmit. That is what the global thing is, U is equal to U. But in our country sir, normally what we have seen, वो तो ये विदेश वाला तो सीन है नहीं कि यहाँ पे अमीर और you know those MSMs who are there sir, these are all poor marginalized people sir that we have. So they if we are able to actually सर जो सर इसकी एक और बड़ी चीज़ होगी जो हमेशा इस 5 साल के बाद नहीं मिलेगी, इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सर। जो पहले जब ARVs लेते थे तो अगर उम्र बढ़ती थी तो 2 साल बढ़ती थी सर, नाउ इट इज ऑलमोस्ट 30 years सर। इफ दे स्टार्ट टेकिंग इन टाइम एंड दे adhere, they will continue to live for 30 years. So, but we do not have that tangible. Do we have that data, Pradeep? Aging तो epidemic तो ही करें क्योंकि लोग people are surviving. So average age of HIV is increasing. So जितना भी डाटा है, जैसे 86 में पहला केस आया, उसके बाद से अब तक में कुछ इस टाइप के एनालिसिस भी करने चाहिए मुझे लगता है ऑफिशियली। एक मतलब जो भी साइंटिफिक उसका तरीका है, तो उसमें से कुछ जो इन्फ्लुएंस निकलेंगे वो आपको अपनी पॉलिसी के मॉडिफिकेशन में हेल्प करेंगे। जी सर। So the new things are these sir, that because of these interventions, test and treat, viral load testing and universal HIV sir, we are able to not only increase the lifespan but also make it productive, कि वो अब उन्हें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो जाके अपना रोज़ का कारोबार कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, they can have a livelihood and a life rather than living on dole somewhere sir. ये आज भी हमारे यहाँ बड़े लोगों में नहीं है इतना ज़्यादा है सर, वो जो 1 लाख लोग ले रहे हैं वो वही हैं जो प्राइवेट सेक्टर से ले रहे हैं, बट द एपिडेमिक इज ड्रिवन बाय पुअर पीपल हु आर मार्जिनलाइज्ड सर। ठीक। नेक्स्ट, थैंक यू सर। सर ये जब आप वर्ल्ड एड्स डे 2000 पिछले साल तो हुआ ही नहीं, ये 2019 के तस्वीरें हैं सर, पिछले साल तो वर्चुअल हुआ था सर। 14 में भी एक बड़ा फंक्शन किया था आपको सर, 14 में आप लोग मैं नहीं था सर, ये शोभनी थी मेरे ख्याल से। याद है आपको 14 का फंक्शन कहाँ हुआ था? स्टेडियम का जो वो है इंडोर ऑडिटोरियम, मैं कह रहा हूँ कि 14 में भी एक बड़ा फंक्शन हुआ था, मुझे याद आ रहा। ये तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ था सर, ये तो टाउन हॉल में हुआ था, नए वाले टाउन हॉल में। ये तो ठीक है, ठीक है, तो ये सर, तो हो ही गया सर।
और कुछ हमारे लिए आदेश और या सलाह सर, या कुछ हाउ डू वी इम्प्रूव इट सर? आदेश कुछ नहीं है, मेरे को ये है कि भाई थोड़ा इसके ऊपर कंटिन्यूस अपनी जो भी आपके जो कोर टीम है ना, जो 10, 20, 25 लोग होंगे जो इतने साल से कंटिन्यूसली लगे हैं, उनको बिठाइए, उनके साथ एक फ्री एक ओपन ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए कि भाई इसको बहुत बढ़िया कैसे करना है और नई चीज़ें क्या करनी है. देयर शुड बी सम न्यू इनोवेटिव थिंग्स which should attract everybody's attention. Number 1, attention of the society. Sir. Number 2, attention of the media. And number 3, attention of the international bodies. कि भाई हिंदुस्तान में ये नया हो रहा है एड्स में, क्योंकि अभी एड्स तो दुनिया का तो फोकस है ही ना, 2030 तक ख़त्म करना है. तो ज़्यादातर चीज़ों में हम लोग कोशिश करते हैं भाई कुछ करें, स्पीड से करें, तेज़ करें. तो एड्स में भी ये ना हो कि भाई ये वो पुरानी बीमारी जिसकी बात 90 के दशक में ज़्यादा होती थी, फिर थोड़ी कम हुई 2000 से लेकर 2010 में, और अब ये चल रहा है रूटीन प्रोग्राम की तरह. वो एक मतलब अब उतना इसके बारे में बात नहीं होती ना, मीडिया वगैरह भी नहीं करता. लेकिन आपको मीडिया का अटेंशन भी लेने के लिए लोगों का अटेंशन, इसमें कुछ नए डायमेंशंस ऐड करने पड़ेंगे. अभी मैं इसका जवाब अभी इस समय नहीं मांग रहा, लेकिन मेरे को लगता है कि उसको वो तो आपके बजट में सब चीज़ें हो जाएंगी. आपको आइडिया, अच्छा हर एक आइडिया खर्च करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, यही हमारा तो सीख है, पैसे से कोई लिंक नहीं है आइडिया का. तो वो आइडिया जनरेट कराइए. और जो खासकर आपके जो यंगर लोग हैं, जैसे जो पीछे कार्यक्रम वगैरह में बहुत सारे यूथ वगैरह इन्वॉल्व थे, जो अभी 19 में जो कार्यक्रम हुआ था, तो ये सारे लोगों को बुलाइए, इनके साथ इनको कोई इनकी दिन भर की कोई वर्कशॉप करिए. उनसे कहिए ज़रा फ्रीली अपने कुछ आइडियाज़ दो, और इसमें क्या डायमेंशन ऐड करें, और इसमें डायनामिज़म कैसे ऐड करें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पकड़ें, है ना. और जो भी चीज़ें दूसरों को हमने दे दी हैं, मान लो हमने सोचा कि भाई ट्रांसजेंडर, अब ये तो कानून भी सोशल वेलफेयर बनाएगा, देखेंगे भी वो. अब वो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, प्रॉब्लम तो हमारी है ना. एड्स फैल रहा है, अगर ऑफिशियली हमने सोचा कि वो देखेंगे, या ट्रक ड्राइवर को हमने सोचा कि वो नितिन गडकरी जी का मंत्रालय देखेगा, लेकिन बीमारी अगर उनसे नहीं, मेरा मतलब है कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक जनरल बात कर रहा हूँ, इट्स नॉट स्पेसिफिक टू एनीथिंग. तो जो चीज़ हमारे को सीधे प्रभावित करती है, उस पर से हमारे को अपना फोकस नहीं हटाना. वो कौन दूसरा टेक्निकली कर रहा है, वो तो सरकार की टेक्निकलिटी होती है कि ये डिपार्टमेंट करेगा, वो डिपार्टमेंट करेगा, लेकिन अल्टीमेटली हर चीज़ का जो दुष्प्रभाव है वो तो हमारे ऊपर पड़ता है ना. तो हम उस पर से नज़र नहीं हटा सकते. और फिर उसमें भी अगर मान लीजिए वो लोग कुछ कम ज़्यादा कर रहे हैं, तो जैसे टीवी वगैरह में दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके कुछ ना कुछ बीच में एक्टिविटी होती रहती हैं. कुछ उनके साथ, अब जैसे ट्राइबल मिनिस्ट्री के साथ मिलके हम लोगों ने 2-3 एक्टिविटीज़ की, वो भी बड़े उत्साहित हैं ट्राइबल मंत्री भी. तो ऐसी कुछ चीज़ें आप कुछ सोचें, प्लान करें. अब मान लो इफ़ यू इन्वॉल्व, हम नितिन गडकरी जी को इन्वॉल्व करें, वो भी आइडियाज़ का उनके पास खान रहता है. उनको कहें यार हमें तो साहब आपको, आपके ट्रक ड्राइवर जो है हिंदुस्तान के, मुझे पता नहीं, मुझे आपकी सारी रोड पे चलने वाले ट्रक के अंदर ये बीमारी को ढंग से कंट्रोल करना है, आप भी हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाओ. अब हम उसको इन्वॉल्व करने के लिए वी हैव टू प्लान समथिंग, ताकि उनका इन्वॉल्वमेंट हो जाए. फिर उसमें उनके जज्बे को हमने खड़ा करना है. अभी उनका जज्बा सड़क बनाना, बड़ी बड़ी सड़कें बनाना, ये सब चीज़ों में है. वो एक आध कार्यक्रम करते हैं वो इंडिया गेट पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट प्रिवेंशन के लिए, 1-2 बार मैं भी गया हूँ उसमें, क्योंकि हमारा हेल्थ का भी वो एक तरह से इनडायरेक्टली इशू है. जो मरता है, चोट लगती है, तो अल्टीमेटली तो हमारे ऊपर आता है. तो वो एक एरिया मुझे लगता है कि उसमें भी जो दूसरे एरियाज़ इन्वॉल्व हैं, वहाँ हमारा एकदम नए डायमेंशन में कुछ कोलैबोरेशंस हो सकते हैं, और कुछ ना कुछ काम उनकी एनर्जी हम अपने में लगा लें, और वो फिर वहाँ से कुछ भी करवाएंगे. वो उसमें वो पैसा वूसा भी नहीं मांगेंगे, वो करवा देंगे सब अपने. उनके सिस्टम में बहुत पैसा है, उनका 2-2 लाख करोड़ रुपए उनका बजट होता है इसका, रोड वगैरह बनाने का. वो तो किसी को रोड के बनाने वाले ठेकेदारों को इस काम पे लगा दें, तो इसके अंदर पता, मतलब नए नए आइडिया सोचने पड़ेंगे. ये आपको आएंगे जब आप अपने लोगों को बिठाओगे
और कहोगे भैया सुबह से शाम तक मुझे तो पता नहीं, मुझे तक आज यहाँ से 100 नए आइडिया निकाल के चलना है। हर आदमी जो सोचेगा वो सोचते ही कुछ ना कुछ दे देगा। अभी मैंने कुछ नहीं सोच के आया था, मैंने अभी इतनी ही लास्ट 2 मिनट्स में मेरे दिमाग में ये आया, क्योंकि मैंने दिमाग को अपने ऐसे थोड़ा सा रगड़ा, तो नेचुरल वे में आया ये, यार इन मंत्रालय को भी पकड़ो ना, ये खाली इनके ऊपर छोड़ के कैसे होगा। उनका सर वैसे एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट भी है इनका, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज का, जिसमें उनकी 6 महीने में एक मीटिंग होती है विद ट्रांसपोर्ट फेडरेशन। हाँ उनकी डिमांड सुनते हैं वो की, और ट्रांसपोर्ट फेडरेशंस के पास डाटा बैंक है और दे आर ट्रकर्स। तो ये ट्रांसपोर्ट फेडरेशन में बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं सर, जैसे करो ये एक, आप ये एक दो चीज़ें ये प्लान करो, एक सोशल वेलफेयर से कुछ बड़ी एक्टिविटी। अब मान लो आप हिंदुस्तान के अंदर ये कोई ट्रांसजेंडर्स का ही हम बड़ा प्रोग्राम प्लान कर दें उनके साथ मिलके, इसको इतनी इसको ट्रैक्शन मिलेगी प्रोग्राम को कि आप सोच नहीं सकते। जब पार्लियामेंट उठा के उनके लिए बिल बना रही है, कई दिनों तक उसके ऊपर डिस्कशन वहाँ पे हो रहा है ना, तो उनके लिए आप ये करेंगे, है ना। या जो दूसरे वाले वर्कर होते हैं, ये सेक्स वर्कर्स वगैरह, इनके लिए आप कुछ प्रोग्राम्स हम प्लान करें, बिल्कुल इनोवेटिव। ट्रक ड्राइवर्स के लिए नए, वो जो होते थे 90 के दशक में, उनको छोड़ दो, अब 21 से लेकर 30 में बिल्कुल लेटेस्ट होने। ट्रक ड्राइवर भी बहुत मॉडर्न हो गए हैं, उनकी टेक्निक्स भी बहुत मॉडर्न हो गई है, उनके सिस्टम भी बहुत वैसे हो गए हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें, और थोड़ा सोचो। मैं तो मतलब कुछ एग्जाम्पल के लिए 2-3 बातें बताई हैं, और कुछ ना कुछ और थोड़ा सा प्लान करके लाइए ना, उसको फिर धड़ाधड़ करिए। फिर इससे कोविड से, टीवी से, इन सब से भी लिंक करके कैसे इसका ऑप्टिमम आउटपुट निकाला जा सकता है बहुत सारी चीज़ों का। कि टीबी ख़त्म हो रही है तो उसी के साथ साथ कुछ एड्स का भी भला हो जाए, और एड्स ठीक हो रहा है तो उसके साथ साथ कुछ टीबी का भी भला हो जाए। सब चीज़ें हैं तो इंटरलिंक्ड ना एक दूसरे के साथ। फिर पहले तो बहुत इन्वॉल्वमेंट होता था 90s वगैरह में, तो ये धर्म गुरु वगैरह का हम लोग बड़ा इन्वॉल्वमेंट किया मैंने। तो ये जो 93 से 98 में मैं तो सारा ये एड्स का कैंपेन चलाता ही इस पे था, इंटेग्रिटी ऑफ सेक्सुअल रिलेशंस पे। कि हमारे यहाँ जो हो बोलते हैं कि जो पत्नी है वो अर्धांगिनी है और पति जो है वो अर्धनारीश्वर है। हमारे यहाँ कोई मल्टीपल वो रिलेशनशिप करने का कोई ना तो कंसेप्ट है ना कोई फैशन है, और उसकी जो सैंक्टिटी है जो एक रिलेशनशिप की, पति पत्नी की, मैंने तो उसके ऊपर बहुत कैंपेन चलाए 93 to 98 के अंदर दिल्ली में। और ये जो आपका कंडोम वगैरह का भी है वो तो अभी भी शायद चलते होंगे, लेकिन कंडोम वाले में क्या है कि भाई आप कहते हो कंडोम मतलब कंडोम यूज़ करो चाहे जो मर्ज़ी करते रहो, दैट इज़ ऑल्सो ए रॉन्ग अप्रोच। तो उसको भी रीडिफाइन करके आज नए कंटेक्स्ट में, नए परसेप्शन में, और कैसे उसको नए सिरे से मार्केट किया जाए 30 साल के अनुभव को देखते हुए। अमेरिका वालों के लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है कि वहाँ इन सब चीज़ों का कोई इतना नहीं है, रिलेशनशिप वगैरह को उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं। हमारे यहाँ तो इसका थोड़ा जो भी हो, सोसाइटी ख़राब भी हो रही हो तो भी बेसिक तो मेंटेन्ड है यहाँ पर। तो ये सारे मतलब कुछ नए देखो आप, अभी तो इस समय नहीं क्या डिस्कशन होगा, कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करके कुछ लाइए नई बातें, 1-आध महीना लगाइए इस पर थोड़ा। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, लेट देम डिस्कस। कभी ले जाइए उनको कहीं कुतुब मीनार पे बैठा के सुबह से शाम तक ब्रेनस्टॉर्मिंग कराइए, पिकनिक कराइए, उसके अंदर पिकनिक के माहौल में डिस्कशन कराइए। कुछ ऐसे जो अफेक्टेड लोग हैं उनकी छोटी मोटी पिकनिक्स ऑर्गेनाइज कराइए, उसमें उनसे फिर पिकनिक के अंदर ही बीच में ये सारी चीज़ें कराइए। मैंने तो ऐसी एक्टिविटी बहुत की है। नहीं, लेकिन इनको सर इनका एडवांटेज ये है कि नागपुर में इनका जो कम्युनिटी कनेक्ट है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। कोई तो कह इनको कहीं ले जाने की भी जरूरत नहीं है, ये नहीं, अपने नहीं, दफ्तर में बुला देखिए लेके virtually कर ले तो वो ले जाने का क्या होता है कि एक तब वो चेंज से, undisturbed करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अभी कुतुब मीनार ऐसे ही नहीं बोला। सर मैं 96 में जब एजुकेशन मिनिस्टर बना था तो मैंने 50 अपने टॉप एजुकेशन के ऑफिसर्स और कुछ उसमें प्रिंसिपल्स भी थे,
उनको मैं वास्तव में कुतुब मीनार के ऊपर लेके गया और मैं कुतुब मीनार पर सुबह से शाम तक बैठे हम और हमने कहा, हमारी सीरीज़ शुरू हुई इस तरीके से, हमने कहा कि दिन भर में ऐसे प्रोग्राम्स को हम प्लान करते हैं कि जिससे बच्चों में एजुकेशन के थ्रू जो संस्कार है उसमें परसेप्टिबल और मेजरेबल, खाली कहने के लिए नहीं कि हम मॉरल एजुकेशन हो रहा है या हम परसेप्टिबल और मेजरेबल चेंज करेंगे कि सुबह के समय बच्चा जब उठेगा तो अपने घर में अपने माँ बाप के पाँव छू के निकलेगा और स्कूल में आएगा तो टीचर के लिए ये भावना होगी। ये समझ लीजिए एक कंसेप्ट दिया था। इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग 50 लोगों की हमने कुतुब मीनार से शुरू की थी। फिर उसके बाद वो ग्रुप हमने 125 का किया, धीरे धीरे करके बढ़ाया। फिर हम 3 दिन तक ये कुरुक्षेत्र के अंदर गए, कुरुक्षेत्र में हम लोग बैठे। ये आपके दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी थे रघुनाथन साहब, ये भी हुआ करते थे। डॉक्टर सतबीर साइलेंस जो आपकी हैं, आपसे जूनियर, आपसे तो सीनियर होंगी, आपके बैच की हैं शायद, मुझसे सीनियर है, वो मेरी डायरेक्टर एजुकेशन थी। ये सारे लोग हुआ करते थे। उसके बाद फिर बीकानेर के अंदर आचार्य महाप्रज्ञ के आश्रम के अंदर हमने जाके 3 दिन हम सब लोगों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग की और उसके बाद एक प्रोग्राम एजुकेशन में डेवलप किया जिसके 5 कंपोनेंट थे। कभी वो तो फुर्सत में अभी अगली मीटिंग शुरू हो रही है, उसको हम लोगों ने स्कूलों में किया और उसमें इतना परसेप्टिबल डिफरेंस हुआ। ये अरुण शोरी की बहन है ना, जो क्या नाम है, नलिनी सिंह, एक प्रोग्राम करती थी आंखों देखी। उन्होंने खुद जाके गाँव में बच्चों के जाके इंटरव्यूज लिए। वो मेरे घर पे आई जब मैं दिल्ली में एजुकेशन, कह रही पहली बार मैंने देखा कि एक बच्चों में कितना बड़ा परसेप्टिबल। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस स्मॉल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ इन स्कूल्स विच स्टार्टेड इन द ब्रेनस्टॉर्मिंग एट कुतुब मीनार। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का ये है, उसमें से इतनी तरह की चीज़ें निकलती है ना, तो वही मैं चाहता हूँ कि कुछ नई चीज़ें करिए। अब तो सुंदर नर्सरी से वो है एमपी देखते हैं, उसमें बैठ के हम कर सकते हैं। भैया आप तो सोच रहा था वहाँ करूँगा। आप अपनी कनेक्टिविटी शुरू कर लो। अगली मीटिंग की है हमने, इसीलिए 5 मिनट पहले ख़त्म कर लिया।